Assalamu alaikum students. Your chapter is national income and today's first topic is circular flow of national income. Circular flow of income means that income and expenditure in an economy are related to each other in a circular way. Circular flow diagram present a visual model of the economy. Receiving of income and production of goods are two sides of one activity. Income is earned only to be spent. Whatever is income earned by the people or by the household is almost spent. राइट अच्छा, ये सर्कुलर फ्लो नेशनल इनकम का या इनकम का ये शो करता है कि आपकी जो नेशनल इनकम है वो एक सर्कल की फॉर्म में जो इकोनॉमी के अंदर फ़्लो कर रही होती है। ठीक, दो सेक्टर्स हमारे पास इकोनॉमी में होते हैं, एक तरफ आपके हाउस होल्ड हैं, दूसरी तरफ आपकी बिज़नेस फर्म्स हैं। ठीक है, बिज़नेस फर्म्स जो कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं गुड्स की फॉर्म में वो हाउस होल्ड स्पेंड कर देते हैं। ठीक है, उनकी जो स्पेंडिंग होती है, स्पेंडिंग से जो इनकम है वो बिज़नेस फर्म्स के पास जाती है और वही इनकम वो दोबारा से मज़ीद प्रोडक्शन के अंदर स्पेंड हो जाती है। दूसरी तरफ आपका जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में। ठीक है, और इन्हीं सर्विसेज पे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को उनका रिवार्ड मिल जाता है वेजेस की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में, जिसको वो इन्हीं गुड्स को परचेज़ करने के ऊपर स्पेंड कर देते हैं जो ये बिज़नेस फर्म्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। ठीक, तो आपकी इनकम जो है वो इसी सर्कुलर वे में जो है वो सर्कुलेट करती रहती है। Firms represent the production side and perform two kinds of activities. By employing the various factors of production, they produce all kinds of goods and services demanded by the people. They sell their output in the product market and receive money payment. Next, the money so received by the firm is distributed among the factors employed in the form of wages, rent, interest, and profit. The receipts from the sale of output are always equal to the payments of factor of production, right? And on the other side, household represent the consumption side and also perform the dual function. Firstly, in the capacity of owners of factors, they provide the factor services to the firms through factor market and in turn receive the income. And secondly, the household become the buyer in the product market and spend their income on the purchase of goods and services. So, production creates income that leads to spending, which in turn call forth the production. Thus, the economic activities continue in a circle. Right? तो ये है आपका circular flow of income. Next topic is money income and real income. If the money value of all the final goods and services produced in a country in a year is calculated at the current prices, it will be the money income of the country. But if it is calculated at the base year prices, it will be the real income of a country. Money income of a country is calculated in terms of money, while real income is the number of goods and services produced in the country in a year. ओके, यानी आप अगर करंट प्राइसेस के ऊपर अपनी इनकम कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी मनी इनकम कहलाएगी, और पास्ट के किसी ईयर को अगर बेस ईयर कंसीडर करते हुए उसके अकॉर्डिंगली इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा तो वो आपकी रियल इनकम कहलाएगी। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मनी की फॉर्म में आपकी जो इनकम कैलकुलेट होके आएगी नॉमिनल फॉर्म में, वो मनी इनकम या नॉमिनल इनकम कहलाती है, और जो आपकी रियल इनकम होती है वो आपकी प्रोडक्शन की फॉर्म में होती है कि गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो किस कंट्री में कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो वो आपकी रियल इनकम होगी। तो इन दोनों, ये जो आपकी मनी इनकम है और जो रियल इनकम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि मनी इनकम जो है वो जस्ट आपका प्राइसेस की इंक्रीज़ की फॉर्म में वो इनकम शो हो रही होगी कि अगर प्राइसेस आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं, आप करंट ईयर की अगर वो मनी इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो प्राइसेस में इंक्रीज़ आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि आपकी मनी इनकम भी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, हो सकता है कि उस ईयर में कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो इतनी ना हुई हो, गुड्स और सर्विसेज जो हैं उनमें इंक्रीज़ ना आया हो, लेकिन चूंकि प्राइसेस में इंक्रीज़ आ गया उसकी वजह से आपकी कंसीडर हो जाएगी कि मनी इनकम में भी इंक्रीज़ आ गया है। राइट, तो जो रियल इनकम होती है वो आपका एक्चुअल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो इनकम के अंदर शो कर रही होती है कि अगर गुड्स और सर्विसेज में इंक्रीज़ आया है, उनकी क्वान्टिटी पहले के मुकाबले में ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है,
तो आपकी रियल इनकम इंक्रीज़ कर रही होगी, ठीक है। और अगर गुड्स और सर्विसेज जो है उनकी क्वांटिटी, उनकी आउटपुट इंक्रीज़ नहीं हुई है, सिर्फ आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, तो रियल इनकम आपकी इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो रियल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला भी आपके पास गिवन है। रियल इनकम इज़ इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर, एंड दैट इज़ 100। उसको हम 100 कंसीडर करते हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर या पास्ट ईयर जो है उसको बेस ईयर कंसीडर किया जाता है, उसकी प्राइसेस का इंडेक्स लिया जाता है जिसको नॉर्मली 100 कंसीडर किया जाता है, यानी यहाँ पे आप इसकी वैल्यू 100 पुट करते हो। फिर करंट आपका जो ईयर है, फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी आपका करंट ईयर 2020 चल रहा है, इसमें जो आपकी मनी इनकम टोटल कैलकुलेट होकर कितनी आ रही है, वो उसको हम डिवाइड करते हैं प्राइस इंडेक्स के साथ, कि इस साल के अरसे के दौरान में प्राइस इंडेक्स आपका क्या रहा है, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास रियल इनकम की वैल्यू आ जाती है। बुक में आपको उन्होंने वैल्यूज़ के साथ एक एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको यहाँ से एक दफ़ा देख लीजिएगा, होपफुली आपको ये समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजम्पशन। अच्छा, ये चीज़ें आप लोगों की नॉलेज में हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हो, जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आगे जो हमने नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली पढ़ना है, जो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है या इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम है, उसके अंदर ये वाले कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। इस वजह से ये सिर्फ आपको एक रिवाइज़ करवा रही हूँ इनको, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसकी नहीं जाऊँगी। कंजम्पशन इज़ द पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स फॉर गेटिंग द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन इज़ कॉल्ड कंजम्पशन। यानी आपकी इनकम का वो पार्ट जो आप अपनी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए स्पेंड कर देते हो, वो आपकी कंजम्पशन कहलाती है, ठीक है। अगर किसी शख्स की इनकम जो है वो 2 लाख है, इस 2 लाख में से अगर वो 1 लाख या 1,50,000 स्पेंड कर देता है अपनी नीड्स के ऊपर, अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर स्पेंड कर देता है, तो ये 1,50,000 उसकी कंजम्पशन कहलाएगी, राइट। कंजम्पशन फंक्शन, यानी कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, C is f of y, both have the positive correlation with each other. It means that when income increase, the consumption expenditure also increase, and conversely when income falls, the consumption also falls. यानी आपकी कंजम्पशन जो है वो आपकी इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। यहाँ पे कैपिटल Y जो है ये आपकी इनकम को शो कर रहा है। आपकी जैसे जैसे इनकम में इंक्रीज़ आता है, उसी तरह से आपका कंजम्पशन बिहेवियर भी चेंज होता चला जाता है। आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है, कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाती है। इनकम आपकी फॉल करती है तो कंजम्पशन भी आपकी फॉल कर जाती है। तो इन दोनों के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हैं कंजम्पशन से रिलेटेड। एक आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC है, और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC है। दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम represent the ratio of consumption expenditure on consumer goods and services and income, or the ratio between consumption and income is called the average propensity to consume। यानी इनकम के साथ आपकी कंजम्पशन किस रेशो से चेंज हो रही है, वो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाएगा। दैट इज़ C डिवाइडेड बाय Y। इस फार्मूले से आप APC को कैलकुलेट भी कर सकते हो। यानी इनकम में इंक्रीज़ आने की वजह से कंजम्पशन में कितना इंक्रीज़ आया, किस रेशो से इंक्रीज़ आया या डिक्रीज़ आया, वो आपका APC शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC। द रेशो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम वुड बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी इनकम में चेंज की वजह से आपकी कंजम्पशन में किस रेशो से चेंज आ रहा है, ये आपका MPC रिप्रेजेंट करता है। MPC इज़ इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो एक बात यहाँ से आपने याद रखनी है कि आपकी MPC की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन इसकी रेंज हमेशा 0 से 1 के दरमियान में होगी। ये 0 से 1 के दरमियान में लाई करती है, 0 से लेस नहीं होगी और 1 से ग्रेटर नहीं होगी, राइट गर्ल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेविंग। Saving is that part of income which is not consumed, or it is the part of income left after making consumption expenditure. In other words, you can say that saving is positive difference between income and consumption. जो कुछ भी आपकी इनकम का हिस्सा स्पेंड होने से रह जाता है, बच जाता है, वो आपकी सेविंग्स कहलाती हैं। सो सेविंग इज़ इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, ठीक है। 20,000 आपकी इनकम है, उसमें से अगर आप 18,000 स्पेंड कर देते हो, तो 20,000 माइनस 18,000, 2,000 इज़ योर सेविंग।
Saving also depend upon the level of income. S is a function of y, and there is also a positive relationship between income and saving. Whenever your income increase, saving also increase, and when income reduce, saving rate also reduce or fall. यहाँ पर भी दो कॉन्सेप्ट हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। दोनों तकरीबन सेम है आपके कंजम्पशन से। अच्छा, इसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव APS इज़ द रेशो बिटवीन एग्रीगेट सेविंग एंड एग्रीगेट इनकम. It can be expressed as APS is equal to S divided by Y. S for saving and Y for इनकम. यानी आपकी टोटल इनकम और टोटल सेविंग के दरमियान में क्या रेशो है, वो आपका APS जो है वो शो करता है. एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द रेशो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम. इनकम में चेंज की वजह से सेविंग में क्या चेंज आ रहा है, किस रेशो से चेंज आ रहा है, वो आपका MPS कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ आपने याद रखनी है. सेविंग रेट आपका जो है वो नेगेटिव हो सकता है. कभी कंजम्पशन तो आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, कंजम्पशन आपकी हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन सेविंग नेगेटिव हो सकती है. कभी ऐसा भी होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर जो हैं वो हमारी इनकम से एक्सीड कर जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी सेविंग जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है और सेविंग आपकी ज़ीरो भी हो सकती है. ये भी हो सकता है कि आप जितनी इनकम जनरेट करो वो सारी की सारी आप स्पेंड कर दो. ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि कंजम्पशन तो आपकी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन सेविंग आपकी नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्वेस्टमेंट. Investment means net addition to the existing capital stock of a country. The construction of new capital assets, for example, the new building, addition of new machinery in industry, um, and construction or establishing new industry or new factory, these are all termed as इन्वेस्टमेंट. राइट, कि आपके जो कंट्री के अंदर एसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितना कैपिटल स्टॉक कंट्री के अंदर मौजूद है, उसके अंदर कुछ नया इजाफा जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है. यानी कुछ उसके अंदर एडिशन होता है और वह एडिशन कुछ नया होता है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी. जैसे कोई नया घर कंस्ट्रक्ट करके उसको अगर रेंट आउट कर दिया जाए तो ये इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन अगर कोई पुराना ही घर बना हुआ है, आप उसको परचेज़ कर लेते हो, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. कोई नई फैक्ट्री या कोई नई इंडस्ट्री अगर लगती है तो वो इन्वेस्टमेंट होगी. अगर ऑलरेडी एक फैक्ट्री काम कर रही है, आप उसको परचेज़ कर लेते हो, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. नई बिल्डिंग्स बने, नए डैम्स बने, नई रोड्स बने, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं. सो नेट एडिशन to the existing capital stock of a country is called investment. Okay, investment function. Investment function shows the different amount of investment at different level of national income. Investment function आपका शो करता है कि different level of income के ऊपर आपकी investment क्या है, इन दोनों के relationship को शो करता है. आपकी investment जो है वो आपकी income level के ऊपर भी depend कर रही होती है और आपकी saving के ऊपर भी depend कर रही होती है. जो कुछ भी आप अपनी amount बैंक में deposit कराते हैं, saving आपकी जो होती है बैंक में deposit जो होती है, बैंक उसको investment purposes के लिए यूज़ करते हैं. सो जिस कंट्री के लोगों में सेविंग की हैबिट ज़्यादा होंगी, ज़्यादा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराई जाएंगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी. और जहाँ पे लोगों में सेविंग की हैबिट कम होगी, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम रहती है. There are two types of investment: induced investment and autonomous investment. Induced investment, when the national income increase, investment also increase and vice versa. यानी जब आपकी नेशनल इनकम के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेट कर रही हो, जैसे ही आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो, इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज़ आए, और अगर इनकम कम हो जाए तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, तो इसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे और ये आपकी इनकम का फंक्शन बनती है. आई इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम. Second is autonomous investment. This type of investment does not change with a change in income. ये आपकी इनकम के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती. दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम. यूजुअली दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ मेड बाय गवर्नमेंट इन इट्स लॉन्ग रन प्रोजेक्ट्स. यानी गवर्नमेंट जो अपने लॉन्ग रन प्रोजेक्ट्स के अंदर स्पेंड कर रही होती है, इन्वेस्ट कर रही होती है, वो आपकी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कहलाती है. इसका आपकी नेशनल इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं होता. और अमूमन ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट इनको कैरी आउट करती है. ठीक है, तो ये हैं आपके कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो आपके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर यूज़ होंगे.
राइट गर्ल्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि आपकी जो कंजम्पशन का ग्राफ बनेगा, कंजम्पशन और इनकम का ग्राफ, वो भी आपका पॉजिटिवली स्लोप्ड ग्राफ होगा। जो आपका ग्राफ बनेगा, सेविंग का ग्राफ बनेगा, वो भी आपका उसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और इसी तरीके से जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में अगर आप एटोनमस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बनाते हैं तो वो हॉरिजेंटल होता है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, बिकॉज आपकी जो एटोनमस इन्वेस्टमेंट है वो आपके इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक हो गया। तो इन टॉपिक्स को ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन इसमें होगी तो उसको हम इंशाल्लाह क्लास में, अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।